component है, that is along y component. Is it clear? That is along y component. That is along y component. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? There is only one component. There is only one component. That the E is along which direction? Y direction. E is along which direction? Y direction. तो अब बात होती है कि अब हम लोगों ने जो है आपका वेव इक्वेशन क्या हो जाएगा? डेल S स्क्वायर EY अपॉन BZ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन BS स्क्वायर डेल S स्क्वायर EY अपॉन डेल्टा C. इस इक्वेशन को हम लोगों ने कहा था कि इसका जो EY इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Z into E I ओमेगा. आखिर ये जो वेव होगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सो लेट अस कंसीडर द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द E EY इक्वल टू फंक्शन ऑफ Z E I ओमेगा. E I ओमेगा का जो सोर्स टर्म फोर्स वाइब्रेशन, इसका हम एंटेना का जो इनपुट एंटेना को हम लोग क्या करते हैं AC हाई फ्रीक्वेंसी AC सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं. एंड वी नो दैट एसिलेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. What is the radiation? That is the wave that is carrying energy. Is it clear? So EY is equal to function of Z. अब हम लोगों ने इसका solution क्या निकाला था? The EY is equal to EY is equal to E I omega T minus T, where the K is equal to omega upon V and साथ ही साथ the N is equal to C upon. Is it clear? So K is equal to N omega upon C. So here N is the refractive index. K is the K is also called that is 2 pi upon K is equal to called 2 pi upon lambda. K is called 2 pi upon K is also called omega is equal to what? Omega is equal to 2 pi nu and nu upon V is equal to. तो ये हमारा इक्वेशन आ गया this one. This is the equation of a plane electromagnetic wave. अब हमको एज का नहीं मालूम है कि जो एज किस डायरेक्शन है, अब उसको हम निकालें. यहाँ तक आपको हम प्रीवियस क्लास में डिराइव करेंगे. ठीक है? अब आपके पास इक्वेशन है क्या? कर्ल ऑफ E is equal to minus delta B upon delta T, and we know that the B is equal to mu into H. Therefore the curl of E is equal to minus mu, that is delta H upon delta. अब इसको लिखिए. This is I, this is J, this is K. This is delta upon delta X, delta upon delta Y, delta upon delta Z, and here that is the EX, that is the EY, and that is the EZ. Is it clear? And this is equal to minus mu, and here we have the del upon delta T, and here we have the IHX, and plus J HY, and here K. और मैंने कहा कि इट इज प्योर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में याद रखिएगा कि प्लेन, अब इसे लिखिए. दिस इज द आई, थोड़ा सा एक्सपेंड कर दीजिए. दिस इज द आई. So let us say that is the I, and here delta EZ upon delta Y, delta EZ upon delta Y minus delta
y अपॉन डेल्टा z, इतना माइनस होता है j प्लस j प्लस j इज इक्वल टू डेल्टा ex अपॉन डेल्टा z, दैट इज डेल्टा ex अपॉन डेल्टा z, इज क्लियर, डेल्टा ex अपॉन डेल्टा z माइनस डेल्टा ez अपॉन डेल्टा x माइनस डेल्टा ez अपॉन डेल्टा x प्लस k, and the k is equal to delta ey upon delta x minus delta ex upon delta y. Is it clear? Or this one is equal to minus mu delta upon delta t, and here this is I, this is hx plus j hy and plus अब आप बताइए कि ये प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोगों ने क्या क्या कंसीडर किया है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोगों ने क्या क्या कंसीडर किया है, हम लोगों ने क्या क्या कंसीडर किया है कि ईजे क्या है, 0. In a plane electromagnetic wave, it has no longitudinal component. It is a pure transverse. दूसरा, साथ ही साथ Ex is equal to 0. क्यों? कि our wave is linearly polarized. It has only one component along y direction. So Ex is equal to 0, but Ey is not polarized. Because it is linearly polarized, it has only one component and along this direction, along y direction. और साथ ही साथ डेल्टा याद रखिएगा, अब डेल्टा ex अपॉन डेल्टा y और delta ey upon delta x is equal to 0. Why? Because it is a plane polarized light. So because it is a plane electromagnetic wave, and I have already told that in a plane electromagnetic wave, the amplitude of either E or H, both are constant at each point over this plane that is normal to the direction of propagation. So if the Z is direction of propagation, then xy will be the plane of constant phase, and E and H both are constant at each point on xy plane. So E and H both are independent of x and y. Is it clear? तो जब इतना को जीरो बराबर के बाबू तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, दिस टर्म, ये वाला टर्म जो हमारा ये EZ 0 है ना, ये क्या हो जाएगा, 0, ये 0 नहीं होगा, ठीक. ये वाला टर्म जो है EX क्या है, 0, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और EZ भी 0 है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और ये वाला टर्म जो है मैंने कहा कि इंडिपेंडेंट ऑफ x और y है, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी जो है. तब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा कि माइनस आई dy अपॉन dz. आपके पास क्या बचा, माइनस आई dy माइनस dy अपॉन dz. Is it clear? प्लस इज इट क्लियर. और ये वाला टर्म 0 हो गया और के वाला भी टर्म 0 हो गया, के वाला भी टर्म 0 हो गया. प्लस जे वाला टर्म 0 हो गया एंड प्लस के वाला टर्म भी क्या हो गया, 0. और इस साइड में क्या है, माइनस म्यू डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, और ये है आई
hx plus j hy and plus k, and this is equal to, is it? तो अब आइए को इस आई को और इस आई को इक्वेट कीजिए। इज इट क्लियर? ये क्या हो जाएगा? डेल्टा EY upon dz is equal to mu delta hx upon delta, है ना? ये वाला टर्म को बचा है माइनस, सो वी हैव दिस, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा? z वाला 0 हो जाएगा, therefore hy will be 0 and hz जो है, तो again the h has no longitudinal component, it has only one component, exists, that is hx. So we have hx in h and ey in e vector. So therefore the electric vector in the electromagnetic wave, in a plane electromagnetic wave, it is always, so we have only two components, h has only y component and e has only y component if we have considered a linearly plane polarized light. Is it clear? तो इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज ए प्लेन, it is a pure transverse wave, it has no longitudinal because Ez is equal to 0 and Hz is equal to 0. Is it clear? अब आपके पास ये इक्वेशन आ गया, सो और Ey का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? व्हाट इज द Ey? Ey is equal to Ey is 0 and we have the E and we have the I and here the omega t and here minus. So what is the delta Ey upon delta z? What is the dy upon dz? What is the क्या होगा बाबू? The Ey is equal to Ey0 Ei omega t minus kz. Is it clear? So dy upon dz is equal to mu delta hx upon delta t. Is it clear? इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? This one is equal to your E by 0. Is it clear? And this one is equal to E, and here we have the I. This is omega t and minus kz. Is it clear? And साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा? This is your minus I into, है ना? पार्शियल डेरिवेटिव है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो पहले हम लोग विद रिस्पेक्ट टू z की, विद रिस्पेक्ट टू z कीजिएगा तो ये वाला Ey0 Ei omega t minus kz भी पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस आई के डेल्टा z अपॉन डेल्टा z, therefore minus. Is it clear? And this one is equal to your, that is the mu, and this is equal to delta hx upon delta. Is it clear? Any problem? So we have Ey is equal to Ei omega t, और ये हो गया माइनस kz, और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस आई के बाहर आ गया, इज इक्वल टू म्यू डेल्टा hx अपॉन डेल्टा t. इज इट क्लियर? अब देखिए, therefore we can write here that this one is equal to, this is nothing but to
this is minus ik, ठीक है, and this is ey is 0, and here we have the e, and here we have the I, and here we have the omega t, and minus ik ey 0 into e I omega t minus kj. Is it clear? Or this is equal to mu, that is delta hx upon delta t. Okay. So we have hx. Therefore the hx is equal to your minus ik. Is it clear? And this is ey is 0, and we have the e I omega t minus kz, and here we have the bt. इक्वेशन कहां से हम लोग कर चले देखिएगा, फिर एक बार देखते चलिए, ध्यान से जेनेसिस कहां पर कर्ल ऑफ e इक्वल टू माइनस डेल्टा t अपॉन डेल्टा। अब कर्ल ऑफ e का क्या हो गया, यहां पे लिखिए इस फॉर्म में, therefore I is equal to delta Ez upon delta y minus delta Ey upon delta z. Yeah. Is it clear? और is equal to कर्ल ऑफ e is equal to minus delta v upon delta t. ये माइनस, ये जो माइनस था और ये वाला जो माइनस था, ये दोनों क्या हो गया, प्लस। Is it clear? अभी इतने क्वेश्चन आ गए, दिस वेरी इजी। ये कितना हो जाएगा, दिस वन इज इक्वल टू माइनस ik, this one is equal to minus ik. Is it clear? And here we have your ey is 0 into e I omega t minus guys e I omega t minus kz, और ये आ जाएगा this is equal to your I into अब ये I से I कट गया और ये कैंसिल। इज इट क्लियर? और हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, बोलिए। जी 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 बोला जाए। जी जी बोला जाए सर। हाँ जी जी, तो मेरा मेल आईडी नोट कर लीजिए ना सर। TPO small t small p small o TPO @of bitsin3.ac.in .ac.in या जी 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 बोला जाए। जी 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 तो सर आप एक काम कीजिए ना, आप पूरा का पूरा कल उनको जो है, जो आपका डिटेल है उनको आप एक बार मेल कर दीजिए, मेल कर दीजिए। हाँ मेल कर दीजिए सर, बिल्कुल मेल कीजिए सर। राइट राइट राइट। तो ये आपका जो है दिस वन हुआ। और व्हाट इज द के, व्हाट इज द के, व्हाट इज द के, what is the k?
What is the K? K is equal to propagation constant, and K is nothing but that is the omega upon V. We have already derived this relation. K is equal to omega upon V. So put the value here, and ये क्या है? This one is okay. So K upon mu omega. K upon mu omega. So this whole term we can write here. This whole term. याद रखिए. This whole term. Is it clear? And we can write this one as hy0, and hy0, this is equal to your K upon your mu omega, and here that is your Ey0. Is it clear? Any problem? This is the your hy0, hx0. This one is equal to your hx0. That is, here we can write this equation as that the hx is equal to your hx0, and here we have this one is hx0. तो जब hx0 इसको मान लोगे, अगर इसको hx0 मानते हो, we can write here that is the hx is equal to your hx0, and we have the ei, that is the omega t, and minus where hx0 is equal to this one. Hx0 is equal to this one. Is it clear? So we can write here that hx0 is equal to minus. What is the minus k? K is equal to omega upon v. K is equal to omega upon v. So right here, the k is equal to omega upon v. Therefore, we can write here that is the hx0 is equal to minus, and k is equal to omega upon v. Omega upon v into that is your mu omega. That is your hx0 is equal to k omega upon v, omega upon v. Is it clear? Into mu omega, and this one is equal to your dy. Omega is here, omega is here. Is it clear? So this is equal to minus 1 upon v mu, and here we have the dy. Is it clear? And what is the minus and 1 upon v? And what is the v? 1 upon v, the v is equal to 1 upon root under mu epsilon meter per second. We have already derived this relation. V is equal to 1 upon root under mu epsilon, that is a meter per second. So 1 upon v, so the 1 upon v is equal to, this is minus, and this is mu epsilon. 1 upon v is equal to mu epsilon upon mu, and this is equal to dy. So therefore we can write here, this one is, that is hx0, that is the hx0, therefore the hx0 is equal to root under your epsilon upon mu, and here this is equal to e. Therefore, the ey0 upon hx0 is equal to root under mu upon. Is it? So we have already derived here that E y0 upon your hx0, ey0 upon hx0 is equal to minus
root under your mu upon epsilon. Therefore, the h x0 is equal to root under epsilon upon mu, and here we have the Ey. याद रखिएगा कि h का x कंपोनेंट केवल हुआ और e का y कंपोनेंट है, therefore the e and the h both are normal to each other. Therefore e and h both are normal to each other. Is it clear? और अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि कर्ल ऑफ h, the curl of h is equal to your epsilon, that is delta e upon delta t. तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगा, यहाँ पे याद रखिएगा कि hx0 यहाँ पर ey0 बटे hx0 यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन आपका, दिस इज इक्वल टू योर same, you'll get the same result. Curl of h is equal to epsilon delta e upon delta t, you'll get the same result. Ey0 upon hx. याद रखिएगा कि x होता है, y होता है, तब z होता है. यहाँ पे e y डायरेक्शन पर है, इसलिए जो वेव का जो प्रोपगेशन जो है, वो जो इम्पीडेंस है, वो अपोज करेगा. Is it clear? याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कोऑर्डिनेट में क्या होता है, अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये z एक्सिस. अगर ये e इधर रहता और h इधर रहता तो e क्रॉस h किधर रहता, इस डायरेक्शन, e क्रॉस h. इज इट क्लियर? देखिए हमारा e किधर है, हमारा जो है e किधर है, y डायरेक्शन पर है. e हमारा y डायरेक्शन पर है और h किधर है, the h is along x direction. तो e क्रॉस h जब लीजिएगा, e क्रॉस h, इज इट क्लियर? तो हमारा अगर x रहता तो हम इसे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, x क्रॉस y i क्रॉस j इक्वल टू k. अब ये अगर हमारा ये e y इधर है और x इधर जब चलिएगा तो आपका वेव का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगा. हमेशा i डॉट j इज इक्वल टू k होता है, ताकि जब j डॉट i लीजिएगा तो माइनस k हो जाएगा. इज इट क्लियर? इसीलिए हमारा यहाँ पे साइन जो है ये क्या आया है, माइनस. व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन? व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइन? इज इट क्लियर? इट मींस दैट द हियर अपोजिट डायरेक्शन. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप केवल e को चेंज कर दीजिए, e को कंसीडर अलोंग x डायरेक्शन, you will find the value of h along y direction. हम लोग लीनियरली पोलराइज्ड लाइट माना है, हम लोगों ने क्या कहा कि x 0 है. अब आप मान लीजिए कि आपके पास x कंपोनेंट है और y कंपोनेंट क्या है, 0. तो उस कंडीशन पे you find that is ex upon hy is equal to plus under root. अगर आपका x डायरेक्शन में e हो और y डायरेक्शन में h हो, ये माइनस साइन जो है ये प्लस हो जाएगा. ये शो करता है कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है, नेगेटिव z डायरेक्शन. इज इट क्लियर? तो आप इस इक्वेशन पे देखिएगा कि इस इक्वेशन से क्लियर क्या होता है कि h has only one component along x direction, y electric field has only one component along y direction, so e is along y direction, h is along x direction. It means that the wave is a pure transverse electromagnetic wave because e and h, plane of e and h both are normal to z. E is normal to h is normal to e, and e and h both are normal to z, so all planes are orthogonal to each other. Is it clear? अब ये देखिए वेरी फेमस रिलेशन. अब आप देखिएगा कि हम लोगों ने निकाला the ratio of e to h, the ratio of e to h is equal to root under your mu upon epsilon. What is the e? E is the volt per meter. अगर आप इधर आते हो तो this is equal to volt per meter और h का क्या होता है, that is the ampere per meter.
इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। और एज का यूनिट क्या होता है? एम्पियर पर मीटर। तो एम्पियर एम्पियर कैंसिल हो गया, तो वोल्ट पर मीटर क्या हो जाता है? वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है? दैट इज ओम, दैट इज ओम। अब राइट हैंड साइड का जो है थोड़ा सा डायमेंशनल इक्वेशन देखिएगा, यूनिट निकालिए। राइट हैंड साइड क्या है? रूट अंडर दैट इज द म्यू अपॉन एप्सिलॉन। व्हाट इज द म्यू? Mu is the Henry per meter. What is the unit of the permeability? That is the Henry per meter. And what is the unit of the epsilon? That is the farad per meter. That is the farad per meter. Meter meter का, so this is nothing but root under L upon C. ऊपर नीचे ओमेगा से गुना कर दीजिएगा, ये हो जाएगा nothing but this is equal to your XL into XC, where that is a reactive component, that is a reactive component of the impedance. Is it inductive reactance? This is equal to omega L. And what is the admittance? Reciprocal of capacitive reactance. And that XC is equal to, this is equal to 1 upon omega C. So the unit is ohm, this is unit is ohm. Is it clear? Therefore, ohm square is equal to right, left hand side और right hand side जो कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट और राइट हैंड साइड का यूनिट बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में E is equal to वोल्ट पर मीटर एंड H is equal to एम्पियर पर मीटर। मीटर से मीटर कट गया, दैट इज द वोल्ट पर एम्पियर, दैट इज द नथिंग बट द रेजिस्टेंस, दैट इज द ओम। इज इट क्लियर? अब आप कहिएगा कि सर इसको रेसिस्टिव लेंगे या इसको हम रिएक्टिव लेंगे। तो चूंकि ये रूट अंडर म्यू अपॉन एप्सिलॉन है, म्यू का यूनिट होता है हेनरी पर मीटर, एप्सिलॉन का यूनिट होता है फराड पर मीटर, देयरफॉर वी कैन से रूट अंडर L अपॉन C। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ओमेगा से गुणा कर दिए, तो ओमेगा L इज इक्वल टू योर रिएक्टिव इंपेडेंस, that is omega L, or X is equal to reactive capacitance. So that is equal to 1 upon omega C. This is equal to your 1 upon omega C. Therefore, omega L into 1 upon omega C, this is XL into XC, और XL का यूनिट ओम होगा, XC का यूनिट जो है 1 होगा। Therefore, omega square is equal to root under omega square equal to omega. तो ये चूंकि रूट अंडर L upon C है, हेनरी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है, so it is called the intrinsic impedance. So it is called the intrinsic impedance. So this one is called the intrinsic impedance. Intrinsic impedance. The intrinsic impedance of this one is called the E upon H is equal to root under mu upon epsilon, and this is called the, so this is called the intrinsic impedance, और इसका यूनिट होता है, ये क्या होता है? ओम। और in a free space, in free space, mu is equal to mu naught because mu1 is equal to 1. Is it clear? And epsilon is equal to epsilon 1, since epsilon r is equal to 1. So in free space, mu is equal to mu naught, that is the absolute permeability, and epsilon is equal to epsilon naught, that is the absolute permittivity. Is it clear? So जब इसको लीजिएगा, therefore eta is equal to root under your mu naught upon epsilon 1. Obvious है कि नीचे में 4 पाई से गुणा कर दीजिएगा, इसको 4 पाई into 4 पाई, तो 400 by 4 पाई 10 को -7 और इसके वैल्यू को रखिएगा, then most probably is equal to 377। ये कैलकुलेट कर लीजिए, फिर आप वैल्यू निकालना, that is 377 ohm. So the intrinsic impedance of a free space for electromagnetic wave, आप जानते हो ना कि जो रेजिस्टेंस होता है, it prevents the flow of the electron. तो जो impedance है, क्योंकि electromagnetic wave है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में E है मतलब वोल्ट पर मीटर, मतलब कैपेसिटी प्रॉपर्टी है, और साथ ही साथ जो है दैट इज H, दैट इज योर दैट इज द करंट डेंसिटी, H डॉट L इज इक्वल टू I, इसको करंट डेंसिटी। तो ऑब्वियस है कि जहां पे आपका करंट है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हो जाएगा। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के सामने कोई एरिया रखिएगा, देन द phi इज प्रोपोर्शनल टू I, that is a magnetic flux is proportional to the current, and what is the constant of proportionality? That is the inductance. Therefore phi is equal to Li, therefore Li is equal to phi upon I. Henceforth that is the impedance of the medium, a free space for electromagnetic wave is 377 ohm। और अब what is the relation between your B and the E? What is the relation between the B and the E? We have derived the relation H is equal to epsilon upon mu into, is it clear? Okay, root under epsilon upon mu। और आप जानते हो कि क्या होता है mu H, दोनों तरफ mu से गुना कर दो, therefore this is equal to mu and this is equal to epsilon upon mu and this is equal to, is it clear? And mu into H, this is equal to E, this is equal to your B। okay, और आप जानते हो कि this one is equal to, आप इसको लिख सकते हो mu को आप जब इसको लिखिएगा तो it is very easy, mu जो है रूट mu है, और इस mu को क्या हो जाएगा रूट अंडर, this is mu epsilon into, है ना, इसका रूट क्या हो जाएगा, रूट mu into mu, रूट mu कटता है तो एक रूट mu बचे, और रूट epsilon, therefore रूट mu epsilon। Is it clear? And this is equal to E upon B। Why? Because the E is equal to E is equal to 1 upon root under mu epsilon। We have already derived. So that is the relation between the magnetic induction field wave. This is the magnetic induction field wave and the electric field intensity. Is it clear? So in free space, mu is equal to, mu naught, because the mu r is equal to 1 and epsilon is equal to epsilon naught, because epsilon r is equal to 5. Mu is equal to mu naught mu, epsilon is equal to epsilon naught। is it clear? तो यहाँ पे b तो क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, b is equal to, therefore you can write the b, therefore the b is equal to E upon C, where the C is equal to 1 upon root under your mu naught epsilon। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E free space में 1 upon mu naught into epsilon and 1 upon mu naught epsilon naught is equal to C, that is the velocity of the light in an electromagnetic wave in the free space, and this is equal to what? This is the meter per second, and this is equal to 3 into 10 power 8, that is the meter per second. Now this is the relation between your B and the C. So the B has negligible effect, since the B is equal to E upon C, and what is the C? C is the 3 to 10 power 8 meter per second। Is it clear? और B अपने आप मिली वोल्ट में होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके शरीर पे मिली वोल्ट होता है। तो सोचिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो इंडक्शन फील्ड है वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला है, वो तो E का बटे 3 into 10 पावर क्या कहते हैं 8, मतलब 3 10 पावर माइनस 8 टाइम्स कम हो जाता है, तो उसका नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। इसलिए जब हम बात करते हैं इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद मैटर, in that condition
we always discuss about when the electromagnetic wave or the electron is subjected to the electric field. Why? Because the effect of the B is negligible on the material. If any material is subjected to the electromagnetic wave, in that condition, the electron will be only influenced by the electric field, not the magnetic induction field B, because B is equal to E upon C. So we have already discussed about the Maxwell's equation, that the Maxwell formulated the laws of electrostat and magnetostat in form of four equations. That is the divergence of D is equal to 0, divergence of B is equal to 0, or D dot ds is equal to 0, B dot integral B dot ds is equal to 0. That is curl of E is equal to minus delta B upon delta T, or we can say the line integral E is equal to minus delta phi B upon delta T, and curl of H is equal to J plus JD, or the line integral of H dot dl is equal to J dot ds plus JD dot ds, where the JD is the displacement current density, that is the delta D upon delta T, and J is equal to sigma E. Is it clear? We have already derived we have already discussed about the concept of the your displacement vector, displacement current density, displacement current. That is a contribution of the Maxwell in the Maxwellian equation, that he introduced the concept of the displacement current, because the Ampere's law is as valid for only the steady current or the DC current, but it doesn't satisfy, it is not in accordance with the equation of continuity. So Maxwell modified its own equation, that is the Ampere's law, okay, that satisfied the equation of continuity. Is it clear? That equation is in accordance with the equation of continuity. Okay, so that is known as the contribution of Maxwell in the Maxwellian equation, and then after Maxwell discussed, we discussed about the propagation of the electromagnetic wave. We have derived the wave equation. First, we write divergence of D is equal to 0 in a dielectric or the free space. The divergence of E is equal to 0 or a divergence of E is equal to 0. इसका मतलब है कि EZ0, HZ0, और उसके बाद हम लोग कर्ल ऑफ E is equal to, उसके फिर हम लोगों ने वेव इक्वेशन निकाला, that is del square E. देखिए हम लोग इक्वेशन क्या निकाला? थोड़ा सा जनरल इक्वेशन जब आप डिस्कस कीजिएगा ना, हम लोगों ने इक्वेशन निकाला था कि your del square E is equal to your 1 upon V square, that is del square E upon delta T square. और उसके पहले हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ वेव जानते हैं कि क्या होता है, that is the del square your let us say that E is equal to 1 upon your equation था, this is equal to your क्या निकाले तुम लोग mu epsilon, और हम लोग ऑलरेडी इक्वेशंस निकाले हुए हैं कि डेल स्क्वायर कोई भी अगर डेल स्क्वायर प्रेशर डिफरेंस है, डेल स्क्वायर कोई भी वेव के लिए डेल स्क्वायर E is equal to 1 upon V square, that is del square P upon delta T. ये जनरल इक्वेशन हम लोग मैकेनिकल में, और ये हम लोग इक्वेशन निकाले, इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं तो मेरा निकल जाता है कि T is equal to 1 upon root under mu epsilon. तो इस इक्वेशन को जो है हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 upon V square del square T upon delta T. और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, therefore the E जनरल इक्वेशन जो होता है E is equal to E0 E I, that is omega T minus K dot. हम लोग अभी तक इक्वेशन में क्या पढ़ा था कि our wave is propagating only along a fixed direction, z direction, but let us say this is the wave front, this is the wave front, so K, it is the direction of propagation K.
So k, it will have three components: kx, ky, and the kz. So here we have the k is equal to I kx, sorry, I kx plus j ky, and here that is the k, and here that is the and r, position वेक्टर r. So मान लीजिए कि कोई हमारा अगर वेव जा रहा है, लेट अस से दिस इज द x, दिस इज द y, एंड दैट इज द j, और ये हमारा जो दिस इज द r, और ये हमारा वेक्टर है। तो यहाँ पे आप निकालिएगा ये चीज। So this r is equal to, this is I x plus j y, and here that is the k. Is it clear? अब जरा इस इक्वेशंस को अगर आप लिखते हो यहाँ पे दिस इक्वेशन को, तो अगर आप लिखते हो डाइवर्जेंस ऑफ E is equal to rho B in a free space or a non-conducting medium, this is equal to, because rho B, the charge density in a non-conducting medium, the net charge in a non-conducting medium is 0, in a free space it is also 0. Therefore, we have the delta here, divergence of E is equal to 0. तो divergence of E is equal to 0 हो जाएगा, तो अब आपको जो है यहाँ पे डेल्टा E अपॉन डेल्टा E का तीन कंपोनेंट होगा ना, EX, EY और EJ. तो EX is equal to E0, then we can write here this is equal to delta EX upon delta X plus delta EY upon delta Y and plus delta EZ upon delta Z. Okay, so we can write here this equation as E का तीन कंपोनेंट होगा IEX plus JEY plus K. तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व कीजिएगा तो ये एक आ जाएगा E0 I ओमेगा t minus K dot R. तो K dot R है, तो K का तीन कंपोनेंट है KX, KY, KZ, और R का तीन कंपोनेंट है XY, X, Y और Z. तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू ये E0 I ओमेगा t minus K dot R तो रह जाएगा। उसके बाद अब आइएगा क्या, डेल्टा अपॉन डेल्टा X किसका, दिस वन। तो जब दिस वन के लिए आइएगा तो ये आपका आ जाएगा दैट इज KX डॉट X, इसका KX X ये क्या हो जाएगा KX X plus KY Y plus KZ Z। तो इसका कौन सा टर्म केवल रह जाएगा, इसका केवल जो टर्म रह जाएगा डेल्टा EX अपॉन डेल्टा X का, दैट इज योर K और ये K डॉट R है, KX और ये X, इज इट क्लियर, KX और इनटू Y। तो ये हमारा जो फाइल दिस इक्वेशन इक्वल टू I and this इक्वल टू K and this डॉट। तो कहते हैं दिस इज K is perpendicular to, इज इट क्लियर, K is perpendicular to, इस तरह हमारा पूरा डायग्राम, सॉरी दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस इज I K डॉट E इसको इक्वेशन में सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा, याद रखिएगा ये यूनिट वेक्टर है और ये दूसरा I स्क्वायर इक्वल टू माइनस ये दैट इज डिफरेंट क्लियर। सो दैट इज I K डॉट E इज इक्वल टू 0, देयरफॉर K is perpendicular to the direction of propagation is always perpendicular to the electric field. The direction of propagation ये direction of propagation, ये wavefront, a wavefront E और H, ये जो direction of propagation है that will normal to the your wavefront है ना, कोई भी वेव जा रहा है तो क्या wavefront जाता है, और ये हमारा direction of propagation। ये प्लेन जो है XY प्लेन E और H का प्लेन, और ये K और ये K propagation constant, तो K is always normal to the K, और ये H है और E है, K is always normal to the। इसी तरह डाइवर्जेंस ऑफ, इसी तरह आपका डाइवर्जेंस ऑफ H is equal to 0, therefore this one is equal to I K dot H is equal to 0, therefore that is the H is perpendicular to। तो ये इक्वेशन बहुत आसान है, आप जानते हैं कि E0 का कितनी कंपोनेंट होगा, एक x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में और एक z डायरेक्शन में। तो जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा ही रह जाएगा ना, एक्सपोनेंशियल टर्म। तो ये क्या बचेगा,
ये जो है आपका जो है के आर है, ठीक है, के एक्स एक्स। तो जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा के एक्स एक्स को, एक्स कट करके क्या बचेगा, केवल के एक्स बचेगा, केवल क्या बचेगा, के एक्स बचेगा। फिर क्या बचेगा, के वाई बचेगा, फिर क्या बचेगा, के जेड बचेगा। और ई जीरो का क्या कंपोनेंट है, ई जीरो एक्स प्लस ई जीरो वाई प्लस ई जीरो जेड। तो इसका केवल ई जीरो एक्स, और हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज के एक्स ई जीरो एक्स प्लस के वाई ई जीरो वाई प्लस के जेड ई जीरो जेड। तीन स्टेप है, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। मुझे आपको जनरल वे बताया, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो समझने में, तो यू शुड आल्सो नो अबाउट द, you should also know about the general equation of the wave. Is it clear? तो हम लोग अभी तक ये पढ़े, in the next class we will discuss, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, propagation of the electromagnetic wave। और वेव जो है, और हमारा वेव कहाँ से पैदा हो रहा है, एंटेना से पैदा हो रहा है। एंटेना में वेव कैसे पैदा हो रहा है, क्योंकि वहां पे हम एंटेना में जो है क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे सप्लाई कर रहे हैं, कि कोई भी अगर ये एंटेना है और एंटेना को अगर हम वायर से कनेक्ट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज और करंट को, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज और करंट से यहाँ पे क्या होता है, इज कन्वर्टेड इनटू, एंटेना क्या ट्रांसड्यूसर है दैट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें गया, वेव में गया। जैसे बोले हेलो 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 हेलो, तो ये ऑडियो आप तक नहीं जा सकता है जहां आप हैं, तो इसको हमको क्या करना, मॉड्यूलेट कराते हैं कैरियर वेव के साथ। तो कैरियर वेव के साथ मॉड्यूलेट कराते हैं, तो ये हमारा जो एनर्जी जो है, जो हम बोल रहे हैं, वो कैरियर वेव लेकर उसको जाती है, पल्स लेकर जाता है। इज इट क्लियर? तो ये हमारा जो है जो जो हम बोले, ये एनालॉग था, हेलो हेलो, और ये डायफ्राम हिला, और कहाँ हिला, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हिला। तो मैग्नेटिक फील्ड में डायफ्राम हिलता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस योर इलेक्ट्रिक फील्ड and the rate of change of electric field induces the magnetic field। तो इस तरह हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव E और H जो है, जैसे मान लीजिए मोबाइल है, अब मोबाइल है तो हम बोले हेलो मिस्टर सुमित, तो बोले हेलो मिस्टर सुमित, तो यहाँ पे देखिएगा कि इसका जो है साउंड के लिए डायफ्राम लगा रहता है, स्पीकर है। अब वहां पे क्या किया कि वो जो है डायफ्राम जो है, वहां पे एक कॉइल है, मैग्नेटिक कॉइल, उसमें जो है वाइब्रेट किया। तो जैसे ही आप जानते हो कि कोई भी फ्लक्स चेंज होता है, कोई भी फ्लक्स चेंज हुआ, तो फ्लक्स चेंज करने के चलते फैराडेज बाबा कहते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट किया, और उसके सामने अगर कोई एरिया है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंड्यूसेस व्हाट, H field, and rate of change of magnetic flux induces E field। तो इस तरह हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है प्रोपेगेट हो गया। बाकी हम यहाँ वोल्टेज और करंट, हम हमारा जो ये था साउंड था, मैकेनिकल जो था एनर्जी, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किए। अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप तक ले जाना है, तो आप तक तो मेरी आवाज पहुंचेगी नहीं, तो क्या होता है, और ना कोई तार जुड़ा हुआ है, ये आपका जो है मतलब फ्री वेव प्रोपेगेशन है। तो क्या करते हैं, इसको मॉड्यूलेट कराते हैं, किस पे, गीगाहर्ट्ज पे। तो अब वो कैरियर हो गया। लिफाफा के अंदर क्या डालते हैं, मजनून। अगर आपके पास लिफाफा पहुंच जाए और उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन ही रहे, तो मीनिंगलेस होगा। तो वेव की परिकल्पना मीनिंगलेस है अंटिल जो है वो एनर्जी को कैरी करे। अगर कोई वेव एनर्जी को इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं करती है, इट हैज नो मीनिंगलेस। तो उसी तरह जो है कहते हैं कि जो हम बोले उसको कन्वर्ट किए, जो है हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, उसको हम लोग कैरियर वेव पर मॉड्यूलेट कराते हैं, और फिर आपके पास आता, आपके मोबाइल में सिस्टम होता है, उसको मैग्नीफाई करते हैं, उसके बाद डीमॉड्यूलेट कराते हैं, उसके बाद वीडियो सिग्नल, ऑडियो सिग्नल आपको मिल जाता है। तो इस तरह हमारा जो है क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज यही होती है कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसमें कन्वर्जन करना और आप तक पहुंचाना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट जान गए कि इट इज ए प्लेन वेव। और मैंने कहा है कि वेव तब तक से मीनिंगफुल है जब तक से वह इंफॉर्मेशन को कैरी करे, मतलब कि आवर मैकेनिकल वेव कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड अगेन द रिसीवर दैट कन्वर्ट्स दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इनटू द हाई वोल्टेज, हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज एंड करंट। तो और इस तरह फिर से हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फिर इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फिर वीडियो और ऑडियो के सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन को हमको लेकर जाना है। तो कहते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब चलती है तो एनर्जी को कैरी करती है, देन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी
per unit, the rate of flow of energy per unit area is called the Poynting vector. Is it clear? Just like the charge neither be created nor destroyed, in the similar way, the energy neither be created nor destroyed, it is always conserved. So the rate of flow of energy per unit area, that is called the Poynting vector. So the Poynting vector, the intensity of the wave is always normal to the plane of equiphase. That energy is flowing along the direction of propagation of the electromagnetic wave. Is it clear? And that is called the rate of flow of the energy per unit area. That is called the Poynting vector. And we also know that the electromagnetic wave, it is having the momentum, and the rate of change of momentum, that is the force, and force into distance, that is the work done, and the rate of change of work done, that is the power, and the power per unit area, that is called the intensity. Is it clear? So and this is one by. So in the next class we will discuss about the your point concept of the Poynting vector, the Poynting theorem, is it clear? And the average Poynting vector, as well as the average electromagnetic energy. We know that the energy carried out, the energy stored in the electromagnetic wave, since it consists of electric field and the H field, therefore the total energy density of stored in the electromagnetic wave, 1/2 epsilon E square plus 1/2 mu naught H square. We know that the electrostatic energy is equal to Q square upon twice C, या 1/2 CV square, या 1/2 epsilon E square. Is it clear? In the similar, we know that in a coil, आप जानते हो किसी भी कॉइल में आप जब करंट सेटअप करते हो तो उसके अपोज में जो है, according to Faraday's law, क्या होता है? The work is done to set up the your current in a coil, उसको अपोज करता है, and this is equal to epsilon E is equal to L di upon dt, और E को आप E क्या है? EMF E पोटेंशियल, और उसको E को करंट से गुणा कर दीजिएगा, पावर हो जाएगा, और उसको टोटल पावर इंटीग्रेट कर दीजिएगा, दिस इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, half LI square, that is the energy stored in a induction coil. Is it clear? और उसको H field में convert कर दीजिएगा तो 1/2 mu H square. We know that what is the relation between the H field and the current? H is nothing but the ampere per meter square, ampere per meter. H is equal to I upon D. So याद रखिएगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल याद है तो यू कैन डिराइव एनीथिंग. याद रखिएगा कि अगर सिखाई विद्या और उपजाई माया, सिखाई विद्या और उपजाई माया मतलब इंड्यूस्ड इफेक्ट जो है उसी समय तक रहता है जब तक से सोर्स है. इसलिए उपजाई माया और सिखाई हुई विद्या आदमी भूल जाता है. इसलिए जरूरी है कि कोई भी चीज जब आप पढ़िए तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़िए. तो जब फर्स्ट प्रिंसिपल जानिएगा तो यू कैन डिराइव एनीथिंग. दुनिया में तब कोई चीज भी असंभव नहीं है, अन्ना भूलने का कोई जो है प्रश्न होगा. तो कुछ हाथ उठा हुआ है, या मिस्टर सुमित कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ. गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. बोलिए. जिंदगी में गुड मॉर्निंग होना चाहिए. नहीं सर ये चीज समझ में नहीं आया सर, जो आप लिखे यूनिट वेक्टर k.E इक्वल टू 0 कैसे हुआ सर, ये समझ में नहीं. देखो, डाइवर्जेंस ऑफ E 0 होता है ना. आवाज आ रही है मेरी आवाज आ रही है? यस सर. तो इसको पहले आपको पहला हम समझाते हैं कि आपका फर्स्ट इक्वेशन हम क्या लिखे थे. पहला, ये तो जनरल लिखे हुए हैं. अभी हम लोग क्वेश्चंस क्या निकाल रहे थे कि H is equal to epsilon upon V the H x is equal to, यही निकाले थे ना? निकाले थे कि नहीं निकाले थे? बोलो, आवाज आ रही
यस सर। बोलो ना, ये निकाला थे। We can write this expression as h Yes. equal to root under epsilon upon mu, and here that is your k cross e. K cross. Yes. k क्या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, समझ में आ रहा है? Yes sir. h का केवल एक ही कंपोनेंट Yes, sir. किधर है, x डायरेक्शन पर। इज इट क्लियर? तो e y Yes, है तो h क्या है, x है। Yes. समझ में आ रहा है? X है। और z क्या है, z इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इज इट क्लियर? तो एक्चुअली दिस इज द रिलेशन कि k क्रॉस e इक्वल टू, अगर ये e y है और वेव z डायरेक्शन में, वेव हमारा किधर है, e y पर है, और x किधर है, x पर है, Z direction. और वेव हमारा e y इज द फंक्शन ऑफ z है, e y इज द फंक्शन ऑफ z है। तो ये जो k है, यूनिट वेक्टर k जो है, k क्रॉस e मतलब z क्रॉस y, मतलब इसको ले, अगर आप मानते हो दिस इज z डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, और इसको तुम मानते हो दिस इज द y डायरेक्शन, इज इट क्लियर? तो z क्रॉस y इज इक्वल टू -x होगा। y क्रॉस z क्या होता है, x होता है कि नहीं होता है? अगर इसको तो मान लो कि ये y का मतलब क्या हो गया, तीन वेक्टर होता है, i, ये होता है z, ये होता है k। Okay. तो क्या होता है, i क्रॉस j इज इक्वल टू क्या होता है, K. होता है कि नहीं होता है? j क्रॉस k Yes, इक्वल sir. टू क्या होता है, i होता है। तो y क्रॉस Yes, j sir. क्या होता है, x y j, x क्रॉस y इक्वल टू z होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, x y Yes, sir. इक्वल टू j, और y z होके क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे माइनस साइन है, और यहाँ पे ई वाई है, और यहाँ पे x है। इसका मतलब है ये h का किधर है, x डायरेक्शन पे है, और e किधर है, y डायरेक्शन पे है, X और ये माइनस जो कर रहा है, इसका Y मतलब direction. है कि h जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर है, के और opposite. साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी जो है वो परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए Yes, k sir. जो है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, along this direction is यूनिट वेक्टर z। इसको क्या लिख सकते हो, i j k, इसलिए हम k लिखते हैं बाबा, इसलिए हम लिखते हैं, और e को बाहर निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, e को अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में ले लो e, तो e किधर है, ये j क्रॉस k ना i होना चाहिए, तो k क्रॉस j क्या होगा, ये h किधर है, Minus I. इसको कर दो, ये h, इज इट क्लियर? और ये यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड बाहर निकल गया, तो ये क्या आ गया, I cap. लिख सकते हैं, Yes, sir. लिख सकते हैं ना? तो Yes, sir. क्लियर हो गया कि ये माइनस साइन क्यों आखिर यहाँ पर आया, बताओ। j i डॉट j इक्वल टू k, j डॉट k इक्वल टू i आना चाहिए ना, k डॉट j क्या हो जाएगा, माइनस होगा, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यूनिट वेक्टर में i j k, i डॉट j इक्वल टू k, i j के ऊपर i j के तीनों दूसरे में परपेंडिकुलर है, तो i क्रॉस j इक्वल टू k, j क्रॉस k इक्वल टू i। सब होता है सर, साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, सर्कल क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं? इसलिए हमारा जो है ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन होगा, ये वाला लंबी, इसका मतलब है यहाँ पे हमारा जो है, जो तुम कहे ना कि ये डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल टू G, तो हम लोग क्या करते हैं ना, कि हम लोग जो जनरल के केस में डाइवर्जेंस इक्वल टू इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और डेल्टा अपॉन डेल्टा जी को आई ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि E इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन था E इज इक्वल टू
E0 into E, and here I, that is the omega t minus k dot. अगर मान लो तो एक z डायरेक्शन है तो सिंपल हो जाएगा तुम्हारा दैट इज kz, सिंपल kz, इज इट क्लियर? और k का तीन कंपोनेंट है kx, ky और kz। तो यहाँ पे kx, ky को 0 मान लोगे तो केवल kz into z, तो हम kz is equal to k मान, इज इट क्लियर? बाकी अगर जनरल मानोगे, अगर वेवफ्रंट ऐसे है और ऐसे प्रोपेगेट हो रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, तब यहाँ पे हमारा k का तीन कंपोनेंट होगा ना, ये तीन प्रोजेक्शन होगा, kx में होगा, ky में होगा और kz में होगा। तो इस तरह हमारा जो है ये इक्वेशंस फॉर्म करता है। इसलिए जनरल इक्वेशन और डाइवर्जेंस ऑफ इज इक्वल टू 0, देन द डाइवर्जेंस ऑफ इज इक्वल टू 0, ये डेल को जो है इस हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज माइनस i इनटू k, और डेल्टा अपॉन डेल्टा t का ये डेरिवेटिव पर लीजिए, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट है, इसलिए 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, i ओमेगा बचेगा। और इसको अगर डेल केवल लेते हो तो डेल का मतलब क्या है, डेरिवेटिव डेल्टा अपॉन डेल्टा x, डेल्टा अपॉन डेल्टा y, डेल्टा प्लस डेल्टा ऑफ डेल्टा y, डेल्टा अपॉन डेल्टा x ये वाला टर्म ऐसे ही लिखा जाएगा, फिर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो बात नहीं बचेगा, ये बचेगा इसका kx बचेगा और इसका E0 का भी तीन कंपोनेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग क्या मानते हैं कि एक ही डायरेक्शन में पोलराइज्ड है। अब यहाँ पे जब E0 लोगे तो E0 का भी तीन कंपोनेंट होगा, E0x प्लस E0y प्लस E0। इज इट क्लियर? तो इसीलिए हमारा जो है जनरल इक्वेशन हमारा डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल टू 0 जब लेते हो तो ये वाला टर्म आता है, दिस इज इक्वल टू i k डॉट e, ये तो उसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो डिफरेंशिएट करोगे तो केवल हमारा यहाँ पे e तुमको दिया ही हुआ है, इसी को डिफरेंशिएट करना। k डॉट r को मैंने कहा कि k डॉट r इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज kx प्लस ky y एंड प्लस kz इनटू, और इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो जब x में कीजिएगा तो क्या होगा, ये और ये कट हो जाएगा, i और डेल्टा x अपॉन डेल्टा x, ये 1 तब जब इसको डेल्टा अपॉन डेल्टा x, उसी तरह डेल्टा अपॉन डेल्टा y कीजिएगा तो k आ जाएगा, फिर kz आएगा, और साथ ही साथ ये i वाला टर्म, इज इट क्लियर? और यहाँ पे E0, तो E इज इक्वल टू E0, और E0 का भी तीन कंपोनेंट है, I0 प्लस JE0 एंड प्लस JH y, E0x, E0y, E0z, तो क्या हो जाएगा, दिस इज एक इक्वेशन आ गया E0x एंड डॉट kx प्लस E0y डॉट ky प्लस E0z प्लस kz, तो क्या हो जाएगा, तीन स्टेप आगे आप सोल्व कीजिएगा, विल गेट इट, और नहीं तो सीधे आप वहां से लिख सकते हैं। तो जनरल इक्वेशन आपको हम निकाले, ताकि आपको जो पहला इक्वेशन जो हम निकाले थे h इज इक्वल टू रूट अंडर hx इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर एप्सिलॉन अपॉन म्यू और ey, तो आप देखिए इधर ey है और इधर hx है, तो hx का मतलब क्या हो गया, hx का मतलब है कि इसका ith कंपोनेंट है, और ey का मतलब है इसका जो है केवल कौन कंपोनेंट है, केवल jth कंपोनेंट है, और बीच में माइनस साइन, तो माइनस को जब हटाइएगा तो ये ऑब्वियस है कि j क्रॉस k इज इक्वल टू, सीधे उसको इक्वेशंस बना सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप उसको नहीं भी लाते हैं तो आप इतना, आपका वेव इट इज ए प्योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि इससे सीधे आप लिख सकते हैं कि एज का केवल एक ही कंपोनेंट है x, और y का हम केवल y का क्या लेकर चले, हम एज का कोई लेकर नहीं चले थे, हम एज का मान रहे थे कि तीनों कंपोनेंट है। बाकी जब हम मैक्सवेल इक्वेशन कर्ल ऑफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा t को सॉल्व किए तो हमारा hz भी 0 आ गया और hy भी 0 हो गया, केवल hx आया, और hx और ey के बीच का ये रिलेशन है, मतलब कि h का केवल एक कंपोनेंट है x, और जब e का y कंपोनेंट था तो h का केवल एक कंपोनेंट निकला hx, और hy और hz 0 हो गया। इसका मतलब है कि it is a pure transverse electromagnetic wave in which the electric field, magnetic field are normal to each other, and we have already considered that our electromagnetic wave is traveling along the z direction. तो केवल हमारा kz है, जब केवल kz है, e का आपका केवल y कंपोनेंट है और h का x कंपोनेंट है, तो आपके पास तीन वेक्टर हुआ, एक हुआ आपका z डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, एक हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड y और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड x।
तो ऑब्वियस है कि आपका ई और एच, ई अगर वाई डायरेक्शन में है और एच एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जेड है, इसका मतलब है जेड इज नॉर्मल टू एक्स वाई प्लेन, सो ऑल प्लेन्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर एंड द एंगल बिटवीन द all vectors are up to 90 degree. So it is a pure plane electromagnetic wave in which the plane of equiphase or plane of constant phase is normal to the direction of propagation. And in a plane of constant phase, the E and the H both are independent of X and Y. So the amplitude of the wave is constant at each point on xy plane. Is it clear? Means for delta upon delta x, delta upon delta y of either E or the H, ठीक है, is equal to 0. तो कीर्ति कुमारी, Good afternoon. Sir, we have considered the conditions for the plane electromagnetic wave like Ez, Ex sir 0 लिए थे and Ey is not equal to 0. तो सर आप बता रहे हैं longitudinal wave होता है, तो सर कैसे यहाँ पे Ey is not equal to 0 हुआ था सर? तो प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए ना. क्या बोलो? सर कंडीशंस फॉर द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सर लिए थे ना, तो उसमें Ez, Ex को 0 माने थे एंड Ey इज नॉट इक्वल टू 0 बोल रहे थे सर. तो सर आप बता रहे थे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव सेलेक्टिव वेव को इसलिए सिंपलीफाई किए कि मैंने कहा कि लेट अस कंसीडर कि आवर वेव इज कंप्लीटली लीनियरली पोलराइज्ड. लीनियरली पोलराइज्ड का मतलब हो गया कि हैविंग वाइब्रेशन इट हैज E vector. We know that the periodic variation of E leads to electromagnetic wave. So here we have considered that the wave is plane polarized, linearly polarized, means that the orientation of E is fixed. That E is vibrating only along y direction. Its orientation is fixed, but its magnitude is continuously changing with the time because E is equal to E0. E is equal to function of J I omega t. Is it clear? ये sinusoidally जो है मतलब इसका हार्मोनिक जो है with time t है. With time t इसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है, in the plane of a constant phase. ये हम लोग मान कर चले. तो उसके बाद हम लोगों ने जो है डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू 0 इक्वेशन का, डाइवर्जेंस ऑफ E का मतलब होता है डेल्टा Ex अपॉन डेल्टा x प्लस डेल्टा Ey अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा Ez अपॉन डेल्टा z इज इक्वल टू 0. मैंने कहा कि प्लेन वेव जो होता है वो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो प्लेन ऑफ कांस्टेंट फेज या प्लेन ऑफ इक्विफेज या वेव फ्रंट जो होता है डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है. तो अगर हमारा xy इज द प्लेन ऑफ इक्विफेज और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, इन दैट कंडीशन E और H जो होगा दोनों इंडिपेंडेंट होगा x और y का. XY प्लेन पर E और H वैरी नहीं करेगा, वो कांस्टेंट होगा. केवल E और H जो है Z पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है. Is it clear? इसलिए डेल्टा Ex अपॉन डेल्टा x 0 हो गया, डेल्टा Ey अपॉन डेल्टा y 0 हो गया, therefore डेल्टा Ez अपॉन डेल्टा z इज इक्वल टू 0. हम लोगों ने कहा कि दो चीज हो सकता है, या तो Ez 0 हो या तो Ez कांस्टेंट हो या मतलब यूनिफॉर्मली इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे. बट परंतु हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पैदा हुआ है ये इंड्यूस्ड फेनोमेना से पैदा हुआ, मतलब सोर्स टाइम वैरिंग है, सिनुसाइडल है. ऑब्वियसली कि जब इनपुट जो होगा वही आउटपुट का भी नेचर होगा, आप फोर्स वाइब्रेशन से जानते हैं. तो इनपुट हमारा जो है आपका डिपेंड्स अपॉन द टाइम, और टाइम वैरिंग है, इसलिए आउटपुट जो प्रोड्यूस होगा वो भी टाइम पर डिपेंड करेगा. henceforth we cannot consider the electric field as a zero or a constant. Is it clear? तो इसीलिए हम लोग सॉरी कांस्टेंट या उसको मान के हम नहीं चल सकते हैं, इसलिए हम मान के चलते हैं कि Ez है ही नहीं है. तो Ez जब नहीं होगा तो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट नहीं है. तो जब लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट नहीं, इसका मतलब है कि प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए प्योर ट्रांसवर्स वेव इन व्हिच द वाइब्रेशंस आर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. इज इट क्लियर? यस सर. समझ में आ रहा है ना कि जब लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट 0 हो गया इसका मतलब क्या है कि वेव का
केवल वाइब्रेशंस है, यही नहीं कहेंगे कि पीरियोडिक कोई भी वेव क्या है? हाँ सर। पीरियोडिक वेरिएशन है ऑफ सम। सर वाइब्रेशंस अलाइन होंगे रिस्ट्रिक्टेड टू द प्लेन ना। तो तुमको वेव डिफाइन करना है तो हम लोग क्या कहते हैं कि पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ प्रेशर डिफरेंस लीड्स टू मैकेनिकल वेव, सिमिलरली द पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ ही लीड्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कहता है कि वेव ग्रुप ऑफ फेनोमेना है कि अभी उत्पन्न हुआ, थोड़े फिर एक अंतराल के बाद होगा, फिर उसको रिपीट करेगा। तो ये पीरियोडिक फेनोमेना होता है कोई वेव जो होता है। तो बात है कि हमारा, मैंने कहा कि एक मिनट, तो क्या होता है कि तुम्हारा जो है, एक मिनट, हाँ हर्ष बोलो हर्ष। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, यामा मोटर का स्टार्ट हो गया, यामा का इंटरव्यू आज है ना? चलो भेज दिए थे हम उनको, दीपक का एक व्हाट्सएप कर दिया, मिनट्स ऑफ लेटर्स, क्योंकि वहां पे तो बहुत लोग बैठता है ना, भेज दिए लेटर्स। भेज दो भेज दो भेज दो भेज 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 भेज। हाँ कहाँ का? टेक महिंद्रा थोड़ा कम है, उसका पैसा नहीं देखा। छोड़ दो टेक महिंद्रा, छोड़ दो, ठीक, ओके ओके। तो क्या करते हैं हम लोग कि तो मान लो कि हम लोग कहें कि अभी कोई भी ये वेव फ्रंट है, मान लो ये वेव फ्रंट है, ये ठीक है, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। अब ई और एच इस प्लेन पर है, तो ई और एच इस प्लेन पर है, और ये प्लेन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये पूरे प्लेन पे ई और एच वेक्टर जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, जो एम्पलीट्यूड जो है कांस्टेंट है। इज इट क्लियर? तो अब बात उठती है, और इसको कहते हैं प्लेन ऑफ कांस्टेंट फेज, कहते हैं इक्वी फेज। इज इट क्लियर? तो और ई और एच किधर के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है? जेड, इधर इधर की तरफ, ऐसे। ओके, तो अब मान लो कि ई और एच इसी प्लेन पर है, बाकी ई और एच के बीच में कितना एंगल हम नहीं जानते हैं, इसलिए शुरू में हम मान के चले कि ई इज लाइंग अलोंग दिस वाई डायरेक्शन एंड एच, इज इट क्लियर? द ई इज लाइंग अलोंग वाई डायरेक्शन, but we are not knowing what the H field is making angle with the E, ये हम नहीं जान रहे इनिशियली। तो हम लोगों ने जब E को Y डायरेक्शन में मान के चला और जब HX को निकाला तो देखे कि HX इज इक्वल टू रूट अंडर इप्सिलॉन अपॉन म्यू इनटू EX, मतलब कि H का दो कंपोनेंट जीरो हो गया, Y भी जीरो हो गया, Z भी जीरो हो गया, H का केवल एक कंपोनेंट बचा HX, और E का ऑलरेडी हम लेकर चले थे Y डायरेक्शन। इसका मतलब है कि H is along X direction, E is Y direction, then H is along X direction, and this Y and the X both are normal to the J. That is the direction of propagation. Henceforth, we can write the H is equal to root under epsilon upon mu into, that is K, direction of propagation, unit vector K cross E, that is the electric field. मतलब K क्रॉस E, तो K क्रॉस E लोगे तो क्या होगा? ये K है और ये E है, तो K क्रॉस E इक्वल टू क्या होगा? HX होगा। अगर ये K है और ये E है तो K क्रॉस E क्या होगा? HX। Is it clear? Any problem? No, sir. Thank you, sir. Good. तो और बोलो कीर्ति कुमारी, क्लियर हो गया सर। हाँ, yes.
तो बढ़िया है। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द पॉइंटिंग थ्योरम, है ना। वेव है तो वेव कितना एनर्जी लेकर चल रहा है अपने साथ, हम बोल समझाया ना कि यहाँ जैसे आप पढ़े इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मैक्सवेल इसीलिए मॉडिफाई किया कि जो एम्पियर्स लॉ था वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई नहीं करता था। that equation was not consistent with the equation of continuity, so he modified. अब उसी तरह बात होती है कि मेरा कम्युनिकेशन फ्री स्पेस में, मतलब यहाँ तो मान लो वायर है, जैसे कैपेसिटर तक हम लोग बात किए थे कि कैपेसिटर तक तो कंडक्शन करंट है, कैपेसिटर और दूसरे प्लेट के बीच में, कंडक्टिंग प्लेन के बीच में डाइलेक्ट्रिक है, जो वो दैट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ द करंट। तब करंट ही नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से होगा, तो इन्फॉर्मेशन रुक जाना चाहिए। उसी तरह जब हम यहाँ से बोलते हैं हेलो, तो ये आवाज जो है, साउंड है, डिफ्रैक्शन होगा, ये समाप्त हो जाएगा, बहुत ऊंचाई कर जाएगा। अब तुम बैठे भी हो 300 किलोमीटर दूर पे घर में, अब 300 या 200 किलोमीटर मान तुम लगभग 180 किलोमीटर दूर यहाँ से बैठी हुई हो हमारे सेंद्री से, तो 180 किलोमीटर तुम तो घर में बैठी हो, तो 180 किलोमीटर में मेरी आवाज नहीं चाहिए। तो मेरी आवाज तुम तक कैसे पहुंचे, तो मैंने कहा कि मोबाइल यूज करते हैं। तो मोबाइल एक डिवाइस है, अब उस मोबाइल में जो है कहते हैं एंटेना, अब मोबाइल में एक स्पीकर है, हम जो बोलते हैं हेलो हेलो, तो अपना एक तरह की आवाज, अपना आवाज के सामने रखो, हेलो हेलो, तो देखोगे इट इज नॉट ए डिजिटल, इट इज ए एनालॉग सिग्नल, जो हम साउंड बोलते हैं एनालॉग है। इज इट क्लियर? तो ये मैकेनिकल एनर्जी, प्रेशर डिफरेंस है। अब इसको हम कैसे जो है डिजिटलाइज करें, इसको हम कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदलें, तो डायफ्राम लगाते हैं, और डायफ्राम जब हिलता है तो क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है फैराडेज लॉ से। तो वोल्टेज और करंट क्या होता है, मैकेनिकल वेव इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज एंड करंट, और वो वोल्टेज और करंट जो होता है, अब वो जो है बहुत वीक होता है। अब हमको भेजना है उस सिग्नल को तुम्हारे पास, तो उसको हम लोग पहले डिजिटलाइज करते हैं, फिर उसके बाद एक लिफाफा लाते हैं। लिफाफा क्या होता है, उसको कहते हैं कैरियर वेव। तो कैरियर वेव जो है वो जो आपका गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, माइक्रोवेव जो है कम्युनिकेशन के लिए, उससे उसको मॉड्यूलेट कराते हैं। अब मॉड्यूलेटेड जो है सिग्नल जो है हम आपके पास अब जो भेजते हैं, तो हमारा जो क्या हुआ, ये मैकेनिकल एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आपके पास भेज दिए, उसी में मेरा सारा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आप उसको फिर से डीमॉड्यूलेट करा के आप उसका वीडियो और ऑडियो देखते हैं। तो सोचिए कि जो ओपन एयर कम्युनिकेशन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारा इंफॉर्मेशन लेकर चलती है, वो पूरे एनर्जी को लेकर चलती है। सो यू कैन नॉट इमेजिन द वेव विदाउट द एनर्जी। सो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर मूव कर रही है तो रेट, तो उसके साथ साथ देयर इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और आप जानते हो कि द एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 1/2 म्यू नॉट ई स्क्वायर, 1/2 म्यू नॉट एच स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। तो ये एनर्जी डेंसिटी हुआ। एनर्जी डेंसिटी हुआ तो इतना वॉल्यूम में कितना एनर्जी हुआ, तो हम लाइट के वेलोसिटी से बोलते हैं हेलो, सी और हो गया डेल्टा टी टाइम टी, सी डी टी का लेंथ से और एक एरिया से तुम सिलेंडर बना लो, उसमें हमारा एनर्जी डेंसिटी मालूम है, तो टोटल एनर्जी निकल गया। अब एनर्जी एरिया से फ्लो करेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी दैट इज अ पावर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी दैट इज अ पावर, एंड द पावर पर यूनिट एरिया दैट इज अ इंटेंसिटी। मोमेंटम के टर्म में ले लो, तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज इक्वल टू mc स्क्वायर, देन द मोमेंटम इज इक्वल टू ऑफ द mc, p into c कहते हैं ना, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज द फोर्स, and the force into displacement that is a work, and the rate of change the work done that is a power, and the power per unit area that is the intensity. तो यही is equal to p upon c, p is equal to I upon c। तो इस तरह हमारा जो है सारा कोरिलेटेड है। ये कहते हैं ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, क्योंकि मोमेंटम कैरी करता है, टीसी एमसी, है ना। और ये जो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, क्योंकि उसका फोटोन, उसका जो है मतलब इनर्शिया, कहते हैं ना कि लाइट का जो है जो मोमेंटम होता है ड्यू टू इट्स इनर्शिया, उसका इनर्शियल मास, उसका रेस्ट मास नहीं होता है, उसका जो भी जो चीज होता है दैट इज ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन। तो उसी तरह जो दैट इज वेरी इजी, तो दुनिया में कोई डिफिकल्ट नहीं है, केवल आप याद रखिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल याद रखिएगा तो यू कैन डिराइव। और मेरा कोई एक बच्चा जो है उसने कहा था कि सर एक चीज छूट रहा है, दैट इज द डायलेक्ट्रिक स्फीयर
इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम आपको सबसे लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आज जब ये हो जाएगा तो फिर हमारा जो वो विमल जी छोड़े हुए हैं बाउंड्री कंडीशन ऑफ बी और एच, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो सर। वेरी गुड। इसका नोट्स हमको लगता है आपको शेयर नहीं किया है ना? नो सर, अभी तक तो नहीं किया। ठीक है, शेयर कर। बाय बाय।